A very pleasant morning to all the students of class 9 who are watching my video and have subscribed my channel and shared it to other students also and find worth sharing it. Thanks to everyone. And because in this period of lockdown it is very important that you should remain persistent with your studies, and it should be continued, okay, so that no loss of your study should be there. So moving further, so today, in the continuation of chapter 2, polynomial, we are going to learn a new concept of the zeros of a polynomial. Very important one from your exam point of view, from any competitive exam point of view, and from the point of view of higher standard. And the means in the topic of polynomial, it is very important concept to know about the zeros of a polynomial. It happens many times that students get confused with this particular term. Okay. So starting with it, before moving to the zero of a polynomial, let us see one thing, that to find the value of a polynomial, it means we will see to find value of a polynomial at a given value of variable. Okay, it means let us consider an example. Understand it with an example. If you have a polynomial px is equals to 2x square plus 4, okay, and I say you to find the value of px, means the question is find the value of px at x is equals to 1. ओके, इट मीन्स जो आपका वेरिएबल यहाँ पर पॉलिनोमियल है आपका 2x स्क्वायर प्लस 4, एंड आई थिंक यू हैव गॉट इट दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो इफ़ आई से यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू मैंने स्पेसिफाई कर दी कि 1 पर फाइंड कीजिए. देन यू विल फाइंड p1. ओके, यू विल राइट इट एज p1 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पर 1 पुट कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर plus 4, it will be 2 plus 4, it will be 6. It means it is basically your value of polynomial px at x is equals to 1. Done for this. Now let us consider another polynomial, another example. If you have the polynomial qx is equals to, simple polynomial we are taking, linear polynomial. Okay, degree कितनी है इसकी? 1. The degree is 1 because the highest power of variable present in this is 1. Therefore x minus 2. We have taken a linear polynomial. Now if I ask you to find the value of this polynomial qx at x is equals to 1, at x is equals to 2. Okay, I have asked you to find the value of polynomial qx at x is equals to 2. Then what you will have? q2 is equals to 2 minus 2 is equals to 0. 0 आ गया आपका. ये अब इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पर ले जाएगा. इट मीन्स जब ये वैल्यू क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल था, x2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई. अगर मैंने इस पॉलिनोमियल में 2 पुट किया ना x वेरिएबल की जगह पर, तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया. देयरफॉर अगर ऐसा हो जाए, देन वी से दैट 2 इज़ the zero of polynomial qx. ठीक है, कुछ समझ आया? इट मीन्स वी से दैट 2 इज द जीरो ऑफ द polynomial qx. कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पर इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 के लिए qx कम्प्लीटली ज़ीरो बन गया. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे इन द मैथमेटिकल टर्म? ठीक है, you will have
a real number a, ठीक है, we can take any, it is just a notation. A real number a is said to be zero of a polynomial px if pa equals to 0. समझ में आया? इसका मतलब a real number a is said to be a zero of polynomial px if pa is equals to 0. जैसे यहाँ पर qx था, इट मीन्स qx पोलिनोमियल के लिए a क्या रहा यहाँ पर 2 है ना, a इज़ 2 इन दिस कंटेक्स्ट. रिलेट करिए आप दोनों चीज़ों को. इट मीन्स x और a में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों डेफिनेशंस को क्लियरली सुनना, ध्यान से वीडियो देखना, यू विल गेट अंडरस्टूड. ओके, इट मीन्स अ रियल नंबर a इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स वो a जिसको रखने के बाद पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दे दिया. नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद what do you do? Okay, to find the zero of the polynomial, आपने polynomial की zero निकालने के लिए what you did, taking another example. Now repeating the above example, qx is equals to x minus 2 जो मैंने लिया था, the above example qx is equals to x minus 2, इस polynomial की zero निकालने के लिए basically what you did that आपने क्या किया, x minus 2 को, x minus 2 is an expression. Okay, it is a polynomial, it is an expression अभी तक. Now when you put equals to 0, when you put it equals to 0, it becomes an equation. Okay, ये क्या बन गई, equation. It means इस polynomial की 0 निकालने के लिए basically आपने किया क्या है, इस polynomial को equals to 0 पुट किया है. 0 पुट करने के बाद you find that आपने equation solve की, x is equals to 2, 2 को इधर ले गए ट्रांसपोज करके, x is equals to 2, इक्वेशन सॉल्व हो गई. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है. द LHS बिकम्स इक्वल्स टू 0. ओके, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, देयरफॉर 0 इज द x इज इक्वल्स टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, इन केस ऑफ इक्वेशन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड और आपको इसको याद भी रखना है हमेशा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूट ऑफ द इक्वेशन. इट कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx. ओके, पॉलिनोमियल के कंटेक्स्ट में इट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बट टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यू जस्ट पुट द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, यू इक्वेट द पॉलिनोमियल टू द ज़ीरो एंड यू फाइंड द you find the value of variable जिसके लिए आपका LHS left hand side will become equals to 0, and in that case the value of variable is called as the root of that equation. Okay, equation की root है और polynomial का 0 है. Okay, then root of the equation. Now you will see that, taking another example, in this example your Rx is equals to x square minus 2x. Okay, we have taken this polynomial Rx is equals to x square minus 2x. Now you have to find the zero of this polynomial. Find the zero of Rx. ये आपका क्वेश्चन है, आपको Rx की ज़ीरो निकालनी है. Now ज़ीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन करेंगे आप, पुट x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. नाउ यू हैव लर्नड अबाउट फैक्टराइजेशन. सो आपने x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब जब इस तरीके से है देन क्या होगा, आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, x की मल्टीप्लाई हो रही है, x की मल्टीप्लाई x माइनस 2 से हो रही है और रिजल्ट 0 आ रहा है. तो हमें नहीं पता ना कि क्या 0 है, हम दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं. दिस इज द फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. ओके, तो x आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2. इट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी
तब भी ये 0 होगा। देखो 0 माइनस 0 हो जाएगा ना। x इजिकल्स टू 2 पुट करूँगी तब भी ये 0 होगा। ओके, इट मीन्स पुट करके देख लीजिए, पुट x इजिकल्स टू 0 इन आर एक्स, क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 इजिकल्स टू 0। पुट x इजिकल्स टू 2 in Rx, what you will get 2 square minus 2 multiplied by 2, it is 4 minus 4, it is 0. Both the values, for both the values of x it is coming 0. It means इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल polynomial Rx is 0 and 2. ओके, और अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन के रूट क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं x इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 2. दीज आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. और आपने देखा द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, x की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 2 थी, द पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक मीन्स द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, सो देयरफॉर इट गॉट 2 zeros. यहाँ पर आपकी इक्वेशन लीनियर थी, इट हैज़ 1 0, ठीक है, या 1 रूट. इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो आपका किसी भी इक्वेशन के रूट होते हैं, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज़ द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन या डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल. ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी ना एक्स की प्रेजेंट, उतने ही रूट आप किसी इक्वेशन के फाइंड कर सकते हैं. इट मीन्स अगर आपके पास एक्स टू द पावर 7 इस तरीके से हाई, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 7 है, ठीक है ना, या किसी इक्वेशन की आपकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 7 है, देन यू कैन फाइंड द 7 रूट ऑफ दैट इक्वेशन. मीन्स आपको x के लिए 7 ऐसी वैल्यूज़ मिल सकती हैं जिनके लिए द होल इक्वेशन विल बिकम इक्वल्स टू 0. देयरफॉर दीज आर द zeros of polynomial and the root of the equation. That is all for today's class. Just understand the video completely and see the examples, and you can move further toward the exercise 2.2 also, but before that just understand this concept. Okay, now one more thing, I just want to make you write down some points in the form of note. Okay, just write down them. So this is the last thing about the topic zeros of the polynomial. You must make the note of these 4 points. Okay, so first is zero may be zero of a polynomial. It means किसी polynomial की zero भी हो सकती है. जैसे polynomial px is equals to 2x ले लो, इसकी ज़ीरो क्या है, ज़ीरो. x की वैल्यू सिर्फ ज़ीरो के लिए ये ज़ीरो होगा और किसी के लिए ज़ीरो नहीं होगा, है ना. तो इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो क्या है, ज़ीरो. इट मीन्स ज़ीरो में बी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. नाउ एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0. वो आपने थ्रू द एग्जाम्पल भी देखा. देन अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0. इट मीन्स वो भी आपने इन द एग्जाम्पल देखा दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैड 2 0. लाइकवाइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल हैव 3 zeros. ओके, डिपेंडिंग ऑन द degree of that polynomial. The zeros will depend on the degree of the polynomial. Now fourth point is a non-zero constant polynomial has no zero. It means example आपका अगर you have 5, you know it is a non-zero constant polynomial, है ना. constant polynomial है ये, आपने पढ़े थे पहले constant polynomial. The non-zero constant polynomial has no zero. It means इसकी कोई ज़ीरो नहीं होती. इट मीन्स आप अगर इसको देखें ना 5, इसकी फॉर्म क्या है इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, इट इज़ 5x मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0, है ना. इसकी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल. सो यहाँ पर इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ज़ीरो ना, बिकॉज x की पावर 0 है यहाँ पर. और x की पावर 0 क्यों लिख सकते हैं हम इसको मल्टीप्लीकेशन में, बिकॉज x टू द पावर 0 इज़ 1, द वैल्यू इज़ 1, इट मीन्स इट रिमेन्स 5. ओके, तो इसलिए इसकी कोई भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इसकी ज़ीरो निकालने की कोशिश की और आपने x इजिकल्स टू 0 पुट किया तो ये पता है कैसी फॉर्म बन जाएगी, 0 बाय टू द पावर 0, ये ना 0 टू द पावर 0 बन जाएगा. एंड विच इज़ दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, सो विच इज़ कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. ठीक है, इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं. मतलब ये फॉर्म ना जैसे इन्फिनिटी होता है ना अपना,
ठीक है, वैसे ही समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी होता है ना, वैसे ही इट इज़ एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, ये भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता. दिस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स यू विल बी गोइंग टू लर्न इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, ये आप तब सीखेंगे. सो दैट इज़ वाई ड्यू टू दिस रीज़न, because we can't put x is equals to 0 here, because of this reason, therefore a non-zero constant polynomial has no zero. We get this result. So this is all for this. Thank you class for watching, and be happy, be safe at home, and enjoy learning. Thank you to all of you.